So cell, the basic unit of life. Cell is the structural and the functional unit of life. Okay. So cells contains the cytoplasm. The fluid material of the cell is known as the cytoplasm, which contains different organelles and different granules, which are essential for the survival of the cell and which perform the different functions inside the living organisms. Okay. So cell is the structural and the functional unit of life. What is the level of organization? The different level of organization in the different organisms like cell. The smallest level is the cellular level. That means organisms which are only made up of the cells. For example, amoeba, single cell acts as an organism. Okay, the single cell perform all the activities which make amoeba an organism. Okay, so all the activities which are vital for the survival, they are performed by the single cell. So cells join to form the tissues, then organ system, and then organism. So cell is the basic need. Cell is the building block of the organisms. So we have started from the cell. So there are different kinds of organisms based on the structure of the cells. For example, unicellular and the multicellular organisms. So what are the unicellular organisms? On the basis of cells, organisms are divided into two main kinds: unicellular, multicellular. So what are unicellular organisms? Uni means one, cellular means cells. So whose body is made up of single cell, or the single cell acts as an organisms. For example, euglena, paramecium, amoeba hai, protozoans, bacteria. Okay, the single cells acts as an organisms. Okay, so multicellular, more than one cells are present. Okay, उनमें tissue level भी हो सकता है, organ level भी हो सकता है, cellular level भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल हम पोरीफर्स में स्टडी करते हैं, दे आर मल्टी सेलुलर, है ना. क्निडेरियंस हैं, क्निडेरियंस क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर हैं बट टिश्यू लेवल है उनमें. ठीक है, तो डिफरेंट organisms contain different kinds of cells in case of multicellular organisms. Okay, what are the other divisions of the cells? और कौन कौन सी टाइप्स हैं सेल्स की? What are other types of cells? Differentiated cells, undifferentiated cells. Okay, so differentiated cells are those cells which know their functions. Okay, जिन्हें पता है what they have to perform in the body. उन्हें अपना proper function allot हुआ है. Okay, for example, liver cells, they know that they have to secrete the bile juice. Okay, pancreatic cells के pancreas के जो alpha cells हैं उन्हें पता है कि हमने क्या secrete करना है, insulin secrete करना है. So those cells which know their function properly and perform a particular function in the body. So those cells are known as the differentiated cells. And undifferentiated cells, those cells which do not know what to perform in the body. ठीक है, उन्हें अभी अपना function नहीं पता, they just divide mitotically or mitotically to form the more undifferentiated cells. Okay, तो अनडिफरेंशिएटेड सेल्स ने क्या करना है? सिर्फ डिवाइड. उन्हें सिर्फ डिवीजन का काम पता है अभी. यहाँ तो वो रेस्टिंग फेज में होंगे, यहाँ तो वो डिवाइड करेंगे. डिवाइड करके क्या करेंगे? और अपने जैसे सेल लाइंस बनाएंगे अनडिफरेंशिएटेड सेल्स की. Okay, so the two main types are differentiated cells और undifferentiated cells. For example, undifferentiated cells की example बताओ कोई. For example, stem cells. हमने सुना ना stem cells. Stem cells
पता नहीं है? नो, वो स्टेम सेल्स नहीं, स्टेम सेल्स वो होते हैं जो बॉडी के स्टेम सेल्स, अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं वो, जिनकी कैपेसिटी होती है पूरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जायगोट, जायगोट में क्या होता है, क्लीवेज होती है, क्लीवेज के बाद क्या वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स बनाते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, तो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते क्या है, वो सेल्स विच डू नॉट नो देयर फंक्शंस। ओके, उन्हें अभी ये नहीं पता कि उन्होंने फंक्शन कौन सा परफॉर्म करना है, बट उन्होंने क्या करना है, डिवाइड करना है और खुद की जैसी और सेल लाइंस बनानी है। ओके, सो दीज आर टू टाइप्स, डिफरेंशिएटेड एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। और कौन सी टाइप्स हैं? On the basis of cell structure, prokaryotic cells and eukaryotic. Prokaryotic cells and the eukaryotic cells. So what are prokaryotic cells? Cell structure, वो functioning के basis पे था, on the basis of the functions performed by the cells. हाँ जी, those are differentiated cells and undifferentiated cells. This categorization is based on the structure of the cell. So what are prokaryotic cells? That means उनमें organelles present ही नहीं है। हाँ, so those cells, the सबसे मेन डिफरेंस क्या है, जो इनका जेनेटिक मटेरियल है दैट लाइज एज सच इन द साइटोप्लाज्म। ओके, हर सेल के पास अपनी सेल मेम्ब्रेन होगी, साइटोप्लाज्म होगा, ऑर्गेनेल्स भी होंगी। ठीक है, तो इनमें मेन डिफरेंस कहाँ पे आता है, न्यूक्लियस में। ओके, सो दो सेल्स विच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, देयर जेनेटिक मटेरियल लाई एज सच इन द साइटोप्लाज्म। ये हाँ, तो दो सेल्स आर नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल्स। और जो इनका जेनेटिक मटेरियल है दैट इज नोन एज अ न्यूक्लियोइड। So what is nucleoid? The genetic material of the prokaryotic cells that lie as such in the cytoplasm. Okay. So the next categorization is eukaryotic cell. In case of eukaryotic cells, proper nuclear membrane is present. So this is nuclear envelope. Okay, so this is nuclear envelope and nuclear membrane. So in case of eukaryotic cells, nuclear envelope or the membrane is present, but in case of prokaryotic cells, the well-developed nuclear membrane around the genetic material is absent. Envelope means the covering, nucleus को cover किया हुआ उसे हम nuclear envelope बोल दिया, nuclear membrane भी बोल सकते हो आप. Okay, so this is the main difference between the prokaryotic cell and the eukaryotic cell. और क्या क्या डिफरेंसेस हैं बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड द यूकैरियोटिक सेल्स? हाँ, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स ज्यादा होंगे, इसमें क्या होंगे? तो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं कौन कौन से एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स? सम बैक्टीरियाज, ब्लू ग्रीन एल्गीज। हाँ, तो बहुत कम बैक्टीरियाज हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल्स की तरह एक्ट करती हैं. ओके, सो फर्स्टली वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. So the main parts or main compartments that are present inside every cell are, कौन कौन से मेन पार्ट्स होंगे किसी भी सेल के? सबसे पहले तो सेल एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन, है ना. सेल मेम्ब्रेन या सेल एनवेलप में क्या होगा, किसी में एक सेल मेम्ब्रेन हो सकती है, सिंगल प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो सकती है, किसी में आउटर सेल वॉल हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल हम स्टडी करते हैं ना प्लांट सेल,
उसमें क्या होता है, सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो हम कलेक्टिवली बाहर वाली जो आउटर मेम्ब्रेन है हम उसे बोल देते हैं सेल एनवेलप। ओके, सेल एनवेलप होगा और क्या होगा, ऑब्वियसली साइटोप्लाज्म, और क्या प्रेजेंट होगा, जेनेटिक मटेरियल, या न्यूक्लियोइड, इंक्लूजन बॉडीज, और क्या प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, what are the other organelles or the structures present in the cell? नहीं, we will study, रुक जाओ, ribosomes, next flagella, what is the circular DNA? एक होता है एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल, एक तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, उसके उसको छोड़ के भी एक आपका जो सर्कुलर डीएनए आप बोल रहे हो, दैट इज नोन एज प्लाज्मिड, प्लाज्मिड, एंड देन ओके, तो ये आपका सेल स्ट्रक्चर्स हैं, और भी बहुत कुछ प्रेजेंट होता है आपके सेल में। ओके, सो फर्स्टली वी विल स्टडी अबाउट द सेल एनवेलप। तो आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में है, सेल एनवेलप इज फॉर्म्ड ऑफ द डिफरेंट लेयर्स, फॉर एग्जांपल आउटर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आ जाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, एंड देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, सो दी so prokaryotic cells on the basis of the shapes, bacteria are of different kinds, हम स्टडी करते हैं आपके बैसिलस शेप, ये स्टडी की है आपने, बैसिलस रॉड शेप है आपके, ऐसे रॉड शेप स्ट्रक्चर्स, रॉड शेप बैक्टीरिया। सेकेंड वन इज द coccus shape, these are spherical in shape, they may be in groups or may be present singly or in the groups, है ना। So third one is the vibrio, vibrio means coma shaped, single cell, coma shaped structure होगा इनका, हाँ, streptococcus, हाँ, कोकाई जो है आपका प्लूरल, और लास्ट कौन सा आपका, हाँ, स्पाइरल शेप्ड। Okay, spiral shaped. So these are the different structures of the bacteria. So next है आपका cell envelope. So the outer layer of the cell envelope is known as glycocalyx. Okay. So glycocalyx is the outer wall, outer layer of the cell envelope. Okay. So sometimes क्या होता है, जो आपकी glycocalyx है वो क्या करती है, glycoproteins, made up of the glycoproteins. Glycocalyx is basically made up of different kinds of the molecules. Mainly उसमें क्या present है, glycoproteins. Okay. आउटर लेयर बच्चे, आपकी सेल, अगर ये सेल वॉल है, अगर आप इसका अच्छे से स्ट्रक्चर स्टडी करते हो तो इसमें आपको 3 डिफरेंट लेयर्स दिखाई देती हैं, ठीक है। तो सबसे आउटर वाली जो है उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ओके, ग्लाइकोकैलिक्स ये क्या करती है, आपका स्लाइम लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है। ओके, स्लाइमी सी लेयर होती है, मकस प्रोड्यूस करती है, सो दैट इसका मेन फंक्शन क्या है, सेल की डेसिकेशन ना हो, ठीक है। स्लाइम लेयर बनाएगी सो दैट की सेल की डेसिकेशन ना हो, और इट विल हेल्प इन द एडहेजन ऑफ द सेल टू द डिफरेंट सर्फेसेस। ओके, सो नेक्स्ट आपका ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आ जाता है
सेल वॉल. सो सेल वॉल में आप एक स्ट्रक्चर स्टडी करते हो, दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन, है ना. सेल वॉल मीन्स सेल मेम्ब्रेन. Cell wall is always present in case of plant cells. Okay. So peptidoglycan. So peptidoglycan जो है वो आपकी फर्दर डिफरेंट मॉलिक्यूल से बनी होती है. नैग मॉलिक्यूल्स हैं, नैम मॉलिक्यूल्स हैं. ओके. सो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एसोसिएटिवली क्या करते हैं, कलेक्टिवली फॉर्म करते हैं आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर. सो पेप्टिडोग्लाइकन इज द मेन कंपोनेंट ऑफ द सेल वॉल. मतलब सेल मेम्ब्रेन है आपकी प्रेजेंट, उसमें सबसे मेजर कंपोनेंट कौन सा होता है आपका, पेप्टिडोग्लाइकन. ओके. आगे पेप्टिडोग्लाइकन डिफरेंट जो मॉलिक्यूल से बनती है. ओके. फॉर एग्जांपल नैग मॉलिक्यूल्स हैं, नैम मॉलिक्यूल्स हैं. ओके. सो आपका मेन कंपोनेंट जो है सेल मेम्ब्रेन का, दैट इज योर पेप्टिडोग्लाइकन. ऑन द बेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन सेल आपके जो बैक्टीरियाज हैं हमने उन्हें डिफरेंशिएट किया होता है ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया. ओके. तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, आपकी जो पेप्टिडोग्लाइकन लेयर है वो थिक होती है. फॉर एग्जांपल अगर आपकी ये सेल वॉल में बना रही हूँ, आउटर ग्लाइकोकैलिक्स लेयर, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, और ये आपकी इससे इनर वाली आ जाएगी. अगर ये मैं इसकी बात कर रही हूँ तो ये आपकी जो सेंटर वाली सेल मेम्ब्रेन है, मतलब ये जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन है ये बहुत थिक है इन केस ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज. ओके. ग्राम पॉजिटिव में क्या होता है, ये जो आपकी पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है ये थिक होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. ओके. बच्चे हमने बैक्टीरियाज को डिफरेंशिएट किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर थिकनेस ऑफ द पेप्टिडोग्लाइकन. ठीक है. अब ग्राम नेगेटिव में क्या होगा, ये आपकी जो लेयर है इसकी थिकनेस बहुत कम हो जाएगी. ठीक है. अब यहां तक क्लियर है. अब इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज हैं उसमें क्या होता है, जब हम बैक्टीरियाज को डाई करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टेन्स के साथ, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एक स्टेन वॉयलेट स्टेन डालते हैं, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन डाला. 3 प्रोसेसेस होते हैं स्टेनिंग के. सबसे पहले हम क्रिस्टल वॉयलेट डालते हैं, ठीक है, दोनों सेल्स, अगर आपके पास डिफरेंट सेल्स है, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन आपने डाला, ठीक है. उसके बाद आप डालते हो डी कलराइजिंग एजेंट, कि जो आपने स्टेन डाला उसका एक्स्ट्रा कलर बाहर निकल जाए. लास्ट में आप क्या डालते हो, सैफ्रनिन, पिंक कलर का डाई. ठीक है. तो होता क्या, जब आप वॉयलेट कलर से स्टेन करते हो बैक्टीरिया सेल को, जिसमें तो पेप्टिडोग्लाइकन थिक है, वो डार्कली स्टेन्ड होगा, वो स्टेन को एब्जॉर्ब करके रखेगा. ओके. दैट मीन्स जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे, ठीक है, वो स्टेन को प्रॉपरली एब्जॉर्ब करेंगे. ठीक. उसके बाद डीकलराइजेशन, ग्राम नेगेटिव भी कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब करेंगे, ऐसा तो नहीं है कि वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे. ठीक है. उसके बाद जब डीकलराइजेशन से वो डीकलराइजिंग एजेंट से वॉश करेंगे तो ये एब्जॉर्ब, जिसने कलर एंट्रैप किया तो ग्राम पॉजिटिव उसे रिटेन करके रखेगा कलर को. ओके. ग्राम नेगेटिव जो क्या करेगा, वो लूजली बाउंडेड है कलर पार्टिकल्स के साथ, तो वो उसे रिलीज कर देगा. लास्ट स्टेप आया सैफ्रनिन. सैफ्रनिन पिंक कलर का डाई है. ओके. सैफ्रनिन के साथ जब दोबारा से डाई करेंगे तो इनका ये अपने डार्कली स्टेन कलर में रहेंगे, बिकॉज इन्होंने पहले ही एब्जॉर्ब कर लिया है. और जो आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो सैफ्रनिन डाई एब्जॉर्ब कर लेंगे लास्ट में. ठीक है. दैट्स वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो आपको है वो पिंकिश ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं मोस्टली. ग्राम पॉजिटिव जो होते हैं वो डार्कली स्टेन्ड होते हैं, ब्लूइश कलर के आपको विजिबल होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, because they have different structures of the peptidoglycan layer. So peptidoglycan layer जो है that is thick in case of gram negative bacteria as compared to the in gram positive bacteria. Thick in gram positive bacteria as compared to the gram negative bacteria. Okay. तो आपके जो gram negative bacteria उसमें आपके outer layer में होते हैं mostly lipids present, जिसकी वजह से वो absorb नहीं कर पाती है डाइस को. ओके.
So this is the difference between gram-positive bacteria and the gram-negative bacteria. Okay. So the last is the lipid bilayer. अब आपकी सेल वो एनवेलप की 3 लेयर्स हैं. Okay, lipid bilayer. So you have studied the structure of the lipid bilayer. So basically the phospholipids. We have studied in our previous chapter about the phospholipids. So basically जो आपके phospholipids are that form the bilayer structure in the membrane. Okay, they form this kind of structure. This is your first layer, this is your second layer. तो 2 layers होती हैं. That's why lipid bilayer structure बोलते हैं. These are your phospholipids. Phospholipid study किया था ना आपने. लिपिड के साथ आपका फोस्फोरस ग्रुप अटैच होता है. ओके, फोस्फोलिपिड उसके हम बोलते हैं ये लॉन्ग चेन है आपकी और लास्ट पे आपका फोस्फोरस ग्रुप होता है. फोस्फोलिपिड्स, ठीक है, उसमें फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है. आपका ये बना देता है हाइड्रोफिलिक, ये आपका हाइड्रोफिलिक हेड रीजन, ये आपकी हाइड्रोफोबिक टेल which will repel from water. है ना, hydrophobic tail, hydrophilic head region. These are your hydrophilic head regions. These are tail part. So tail part क्या करता है? They arrange themselves in this structure so that they can repel from the water और so that कि ये water के contact में ना आए. ठीक है, तो ये आपका lipid bilayer structures. And these are your head molecules जो आपके negatively charged हैं. Okay, so ये क्या करते हैं आपका आउटर साइड के पे प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट प्रोटीन के साथ एसोसिएट करेंगे और रिएक्ट करेंगे. ओके, सो इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है. लिपिड बाइलेयर आपका फॉर्म होता है इनसाइड द सेल वॉल. तो यहाँ पे आपके क्या प्रेजेंट होते हैं इनसाइड द लेयर्स? दे आर प्रेजेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन्स. ओके, फॉर एग्जांपल जो इसके आउटर साइड पे प्रेजेंट होंगे, दीज आर योर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. ओके, जो यहाँ आपके इंटरनली सेंटर में प्रेजेंट होंगे. इंटीग्रल प्रोटीन्स. So these are your integral proteins. Okay, so ये आपका lipid bilayer structure. This is कौन? हाँ, ये जो नेगेटिव चार्ज रीजन है वो आपका हेड पार्ट बना रहा है. Okay, so this is the structure of cell membrane or the cell envelope in case of prokaryotes. Okay, so as we know, flagellum is present in case of prokaryotes or the bacteria for their movement. So your next is flagellum or flagella. So what is the function of flagellum? They help in the locomotion of the cell or help in the movement. So what is the structure of the cell? As you know, अगर ये आपका सेल है, okay, ये आपका सेल है, तो आपका फ्लैजेलम ऐसे प्रेजेंट होगा. ठीक है, ठीक है. तो फ्लैजेलम फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर होता है आपका, थिन सा स्ट्रक्चर है, फिलामेंट लाइक. ये आपका 3 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया होता है आपका फ्लैजेलम. ओके, ठीक है. ये आपका पार्ट जो आउटर पार्ट है विच हेल्प्स इन द मूवमेंट, इसे हम बोलते हैं फिलामेंट. ओके, and this is this curved part, this is your hook. Hook का main function क्या है? Which attaches the filament to the cell membrane
और आपका ये वाला जो पोर्शन है विच इज एम्बेडेड इनसाइड द मेम्ब्रेन्स ऑफ द सेल एनवेलप, इसे हम बोलते हैं बेसल बॉडीज और द बेसल रीजन. हाँ, तो मेन 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द फ्लैजेलम कौन से हैं? फिलामेंट, हुक रीजन एंड द बेसल रीजन. ओके, सो आपका जो बेसल रीजन है वो 2 रिंग्स प्रेजेंट होते हैं ये, ठीक है. तो बेसल रीजन का मेन आपका फंक्शन क्या होता है? टू एम्बेड, सो दैट कि ये एम्बेडेड होता है आपका सेल मेम्ब्रेन के साथ. ओके, which provides the base to the flagellum or attaches the flagellum to the main cellular part, main cell structure. Okay, तो this your curve like structure जो आपका है, this is known as the hook, which attaches the flagellum or the hair like structure to the basal body, and your filament is the hair like structure which helps in the locomotion or the movement, which actually move. Okay, so this is the flagellum. And the next structure are pillae or fimbriae. So what are pillae? Okay, और क्या होता है? Thread like structures. So pillae, what is the difference between flagella and the pillae? So flagella are less in number than pillae. हाँ, flagella कम present होते हैं and they are, और उनकी लेंथ भी थोड़ी ज्यादा होती है. ओके, सो पिल्लाई क्या पूरे सरफेस को कवर करते हैं. पिल्लाई आर बेसिकली स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स which cover the whole surface of the cells, which are present more in number than the flagellum. हाँ देखो, ये आपके पिल्लाएं हैं. ओके, तो दिस इज योर फ्लैजेला. फ्लैजेला भी एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकते हैं. ओके, क्लस्टर्स की फॉर्म में फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकते हैं, पूरी बॉडी सरफेस पे हो सकते हैं, सेल के एक साइड पे प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी सेल में सिर्फ सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट हो सकता है. ओके, बट फ्लैजेला जो है एज कंपेयर टू पिलाई हमेशा लेस इन नंबर ही होंगे. ओके, मोरओवर पिलाई का जो स्ट्रक्चर है दैट इज सिंपलर देन फ्लैजेला, एंड फ्लैजेला का जो मेन फंक्शन है दैट इज टू हेल्प द सेल इन लोकोमोशन और मूवमेंट. पिलाई का मेन फंक्शन क्या होता है? हेल्प्स इन द, हम कह देते हैं रिप्रोडक्शन या जेनेटिक मटेरियल अगर एक्सचेंज करना है तो. फॉर एग्जांपल 2 सेल्स हैं, अगर ये अपना जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर कर रहा है टू दिस सेल, ओके, सो दिस विल बी डन विद द हेल्प ऑफ द पिल्लाई. आपने कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा, प्रोसेस ऑफ कॉन्जुगेशन इन फंजाई. तो उसमें क्या होता है, वो अपनी कॉपी डुप्लीकेट करता है और डोनर जिस किसी के पास नहीं है उसे सेंड करता है. फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मिड, हमने स्टडी किया प्लाज्मिड, ये तो सेल का अपना जेनेटिक मटेरियल है. द एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जो प्रेजेंट है सेल में उसे हम बोलते हैं प्लाज्मिड बेटा. सो व्हाट इज प्लाज्मिड? Plasmid is the extracellular genetic material present in the cell in case of prokaryotes. So किसी सेल के पास प्लाज्मिड होता है, किसी के पास नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी सेल के पास प्लाज्मिड नहीं है तो ये प्लाज्मिड क्या करेगा? सेल्फ रेप्लिकेटिंग है जस्ट लाइक डीएनए. तो ये पहले फर्स्टली इट विल रेप्लिकेट इटसेल्फ एंड देन इट विल सेंड अ कॉपी ऑफ प्लाज्मिड टू द सेल विच लैक्स प्लाज्मिड, जिसमें प्लाज्मिड नहीं है. सो ये एक तरह का क्या हो गया? रिप्रोडक्शन का केस हो गया. सो पिल्लाई हेल्प्स इन द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. ओके, हाँ दिस प्रोसेस, वो जो उनमें कनेक्शन बनता दैट प्रोसेस इज नोन एज. यस, so this is all about the cell envelope, flagella or the pillae, the outer cellular structures in case of the prokaryotes. नेक्स्ट आपका है मीजोसोम्स. नेक्स्ट आपका चल रहा है मीजोसोम्स. सो व्हाट आर मीजोसोम्स? सुना नाम? व्हाट आर मीजोसोम्स? हमने स्टडी किया सेल एनवेलप, जो सेल एनवेलप की इनर वॉल है. ओके, दैट फॉर्म
intrusions which are known as mesosome. Okay, the inner membrane or the inner layer of the cell envelopes intrudes and form a structure known as the mesosomes. So basically what is the function of mesosomes? During the cell cycle हम study करते हैं, last में क्या होता है? Cytokinesis, and during the cytokinesis cell forms the cell plate. बनती है ना cell plate during the cytokinesis. So that cell plate is formed by the mesosome, or mesosomes helps in the formation of the cell plate during the cell division or the cytokinesis. Or you can say that it helps in the equal distribution of the cytoplasm during the cell cycle. This is the main function of the mesosomes. So what is mesosome? Basically the intrusion or the folding of the inner layer of the cell envelope. Okay, and it helps in the equal distribution of the genetic material and the cytoplasm during the cell cycle. This is all about the structure of the prokaryotes. So next we will study about the different composition of the cytoplasm and the different organelles present inside the cytoplasm in our next lecture. Okay, so thank you for today.